Okay, students, today we are going to study trigonometric identities. And this is one of my famous quotes that key to success in maths is deep focus and understanding. Now, deep focus. Understanding is only possible when you have deep focus and understanding both are key to success in maths. Now, to develop the habit of deep focus, what we need is that we need some innovative approach to teach maths, right? Some innovative approach. So, you are going to witness it. Watch closely. Okay. So, first of all, before studying trigonometric identities, we are going to study trigonometric ratio, right? Now, you have been studying ratio since childhood. Okay. You can compare ratio with fraction, right? Where upon में कुछ चीजें होती है, right? Something is numerator, something there is in the denominator, and we divide numerator by denominator when then we get a value in decimal point or even sometime a whole number, not whole number, but a natural number or point decimal में value मिलता है, okay, point में value मिलता है. So let's move ahead. Now in trigonometry, what we study about right angle triangle. In trigonometry, we study about right angle triangle. Now see here, what does this word trigonometry means? Okay, here tri means three, you know this. Gono means side, and metry means measurement. So measurement of three sides of triangle is called trigonometry. Measurement of three sides of triangle is called trigonometry. जब हम तीन साइड के मेजरमेंट की स्टडी करते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, then we called it as trigonometry. Now let's move ahead. Here we have a right angle triangle ABC. Okay, this is vertex A, this is vertex B, this is vertex C, and they are joined by three straight lines. They are joined by three straight lines. Okay, so here triangle ABC is closed figure. It is a closed figure joined. Sorry, my mistake. Let me erase this thing. This is a closed figure. Okay, this is a closed figure formed by joining three vertex. Formed by joining three vertex ABC. So triangle ABC contain three vertex. Which are these three vertex? A, B, C. And again it contains three sides. How many sides? Three sides. Which are they? A, B, B, C, and AC. Right? So it contains three sides and three vertex. So number of sides and vertex are similar. That's why it is a polygon. Triangle is a polygon. Okay. When the number of vertex and sides are similar, then it is called polygon. A closed figure having same number of vertex and side is called polygon. So triangle is a type of polygon, just like we have quadrilateral, we have rectangle, we have square. They are all पॉलीगॉन के कैटेगरी में आते हैं वो सब, जहाँ पे वर्टेक्स और साइड का नंबर क्या होता है, सेम होता है. नाउ सी हियर, measurement of this angle B is 90 degree. Measurement of angle B is 90 degree, and the side which is exactly opposite to B is called hypotenuse. Is called hypotenuse. And measurement of angle C is theta degree. Measurement of angle C is theta degree. And the side which is opposite to theta degree is AB. This is the opposite side. And side adjacent. Wait a minute. See here. This is angle C, right? And side opposite to it is AB. And adjacent to it is BC. So this is the adjacent side of theta BC and opposite side AB. Okay, of theta. Now the side which is opposite to 90 degree is called hypotenuse. ये आप दिमाग में बैठा लो. Side which is opposite to 90 degree is called hypotenuse. Okay. Now measurement of angle C हमने बोला थीटा डिग्री है. आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंगल ए का मेजरमेंट कितना है. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज, see here, it is 90 degree minus theta. 90 degree minus
थीटा। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो 90 आपने बोल दिया गिवन है, ये सी का मेजरमेंट थीटा डिग्री ये गिवन है, बट ए का 90 माइनस थीटा आया कहाँ से? तो देखो सिंस चाइल्डहुड यू हैव बीन स्टडीइंग दैट सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इन एनी ट्रायंगल एपीसी सॉरी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स व्हाई एंगल ए का मेजरमेंट पता नहीं, वी राइट इट एज इट इज, एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल सी इज थीटा डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस टर्म शुड बी शिफ्टेड ट्रांसपोज फ्रॉम left hand side to right hand side, so it will become 90 degree minus theta degree, so 180 minus 90 is 90 degree minus theta degree, this is angle A। so angle A का मेजरमेंट कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, और 90 का अपोजिट साइड जो है इट इज हाइपोटेनस, वी नो दिस थिंग राइट। नाउ सी हियर देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो हियर, यहाँ पे देखो क्या लिखा है एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड मींस पड़ोसी, एडजेसेंट साइड मींस पड़ोसी नेबर। सो सी के नेबर में कौन है अदर देन हाइपोटेनस बीसी, सो इट इज एडजेसेंट साइड। एंड सी के नेबर में भी नहीं है, बिल्कुल भी सी का पार्टी नहीं है। सी इज मेड अप ऑफ वर्टेक्स सी एंड टू साइड्स AC एंड BC, टू आर्म्स AC एंड BC राइट, एंड दिस इज वर्टेक्स सी। तो सी का पार्ट नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, पड़ोसी है ही नहीं। कौन है? AB। तो इतना याद रखो, एडजेसेंट मींस नेबर पड़ोसी, एंड अपोजिट मींस बिल्कुल भी पास में नहीं, एकदम दूर है, पार्टी नहीं उस एंगल का। सो दिस इज द एडजेसेंट। ओके, सो लुक हियर, व्हाट वी डू हियर इज दैट एंगल सी जो है इट्स मेजरमेंट इज थीटा डिग्री एंड इट्स अपोजिट साइड इज AB एंड इट्स एडजेसेंट साइड इज BC राइट, वेरी गुड। नाउ एंगल A इसका मेजरमेंट है 90 माइनस थीटा डिग्री। अब इसका अपोजिट और एडजेसेंट क्या होगा आप बताइए? तो अपोजिट क्या होगा इसका? BC, ये इसके अपोजिट में है ना एकदम BC, ये जो BC है, सी हियर, दिस BC इज अपोजिट टू एंगल A एंड एडजेसेंट क्या हो जाएगा? AB। अगेन पॉइंटर वी हैव, सो एडजेसेंट इज AB। बहुत सारी खिचड़ी हो गई आके, आई नो दैट। ओके, तो देखो यहाँ पहले ये अपोजिट था, यहाँ पे एडजेसेंट बन गया, यहाँ पे ये एडजेसेंट था, ये अपोजिट बन गया, तो एंगल चेंज हो गया। तो हाइपोटेनस तो वही रहता है, हाइपोटेनस रिमेन एज इट इज, बस अपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो जाता है ट्राइंगल के, अगर हमने डिफरेंट एंगल को कंसिडर। ओके, ठीक है, तो ये खिचड़ी को ऐसे हम भगा देते हैं अभी। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, तो देखो ये तीन साइड्स का यूज करके मैं 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाऊंगा, तीन साइड का यूज करके। तो पहला जो रेशियो है दिस इज नोन एज साइन रेशियो, दिस इज नोन एज साइन रेशियो, एंड इन साइन रेशियो we take opposite side as numerator and hypotenuse as denominator। तो बताओ ये थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है? इट इज AB, और हाइपोटेनस कौन से? इट इज AC, सो AB अपॉन AC, ये हमारा क्या हो गया? साइन रेशो। ओके, अब आप बोलेंगे सर साइन रेशो तो है पर ये हम थीटा क्यों लिख रहे हैं? अरे इस थीटा के रेफरेंस में हम ये टू लाइंस ले रहे हैं ना, ये अगर थीटा चेंज हो गया तो आपको पता है अपोजिट हाइपोटेनस चेंज हो जाता है राइट। इफ एंगल चेंजेस देन अपोजिट एडजेसेंट चेंजेस राइट। जो लाइन थीटा के लिए अपोजिट है वो ए के लिए, सॉरी सी के लिए अपोजिट है वो ए के लिए अपोजिट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, होंगी ही नहीं, चेंज हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स व्हाई आप हम थीटा को, वो एंगल को भी मेंशन करना है उस एंगल के मेजर को जब हम साइन रेशियो लेते हैं, जिसका साइन रेशियो हम ले रहे हैं। तो ये साइन रेशियो है, किसका रेशियो है? साइन रेशियो है एंगल थीटा का, एंड इट इज AB अपॉन AC इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। ओके, लेट्स मूव अहेड। We have cos theta, cos theta क्या? Adjacent upon hypotenuse, so which is adjacent side here? BC, and which is hypotenuse? AC। tan theta will be opposite upon hypotenuse means AB upon AC, इसमें hypotenuse सही नहीं, opposite और adjacent है, तो AB upon क्या आएगा यहाँ पे? what it will be? AB upon BC, sorry my mistake, AB upon BC, that is this sides, opposite side upon adjacent side, AB upon BC। Okay, so these are the three trigonometric ratios। इनको याद करना बड़ा सिंपल है,
वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओ हीरो ओ ए, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। देखिए इसके फर्स्ट इनिशियल्स मैंने रेड किए, तो साइन क्या है ओ हीरो, कॉस क्या है ए हीरो, और ये क्या है ओ ए। तो साइन ओ हीरो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए हीरो मींस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा ओ ए मींस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस तरीके से एक्रोनिम बना के भी आप इसको याद रख सकते हैं इफ यू वांट टू रिमेम्बर इट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी देखो साइन के बाद मैं दूसरा रेशो क्या ले रहा हूँ, कॉसेक थीटा। ओके, ले लिया मैंने। अभी ये साइन और कॉस में कुछ तो रिलेशन है, प्लीज ऑब्जर्व एंड टेल मी व्हाट इज द रिलेशन। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। सी यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इट इज डिनोमिनेटर हियर, एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर हियर, इट इज न्यूमरेटर हियर। मींस ये रेशो उल्टा हो गया, और जब रेशो उल्टा होता है तो हम क्या बोलते हैं, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ए बी अपॉन बी सी है, इसका अगर बी सी अपॉन ए बी मैं लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा, दे आर रेसिप्रोकल। व्हाट आर, क्या है वो, रेसिप्रोकल है, राइट। सो साइन और कोसेक ये रिश्तेदार है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे है। उसी तरीके से इन द सेम वे कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, और tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट। मतलब ये तीनों आपने याद कर लिए तो कोसेक सेक कॉट ये फ्री में याद हो जाते। आपको सिर्फ उन रेशो को उल्टा कर देना है। साइन क्या है ओ हीरो, तो ओ हीरो है मींस ओ एच है, राइट। ओ हीरो ओ एच, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट उल्टा कर दिया तो कोसेक बन जाएगा, राइट। और उसी तरीके से cos थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। tan थीटा क्या है, अपोजिट ओ ओ ए, ओ ए, तो क्या है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो उसको उल्टा कर देंगे तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, वो क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो इस तरीके से ये तीन याद कर लो, ये तीन फुकट में याद हो जाते हैं। इस तरीके से ट्रिक से आप उनको याद रख सकते हो। लेट्स मूव अहेड। नाउ रेसिप्रोकल, बिकॉज साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। अरे कैसे लिख सकते हैं, सी हियर, whenever one is divided by some fraction, what happens, it we can write this thing as 1/1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इसको डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लेंगे तो ये रेशियो हम उल्टा लिखते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, बीसी अपॉन ए बी, रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर वन से हम फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या होता है, वो फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख दो, राइट। सो उसी तरीके से अगर हम 1/कोसेक थीटा को डिवाइड करें, 1/कोसेक थीटा मीन्स व्हाट, 1/बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या है, साइन थीटा है, और ये क्या था, कोसेक थीटा था। तो अगर हम 1 को कोसेक थीटा से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, साइन। गॉट इट। चलो खिचड़ी को भगा देते हैं ऐसे। तो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, तो हम इस तरीके से लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा। क्यों, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं। अभी देखो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। नाउ यू आर गोइंग इन टेंथ, यू नो कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर ले, साइन थीटा को और कोसेक थीटा को, वी कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो, वी कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, and we can like this also, cot theta is equal to 1/tan theta. We can write like this also. Okay, let's erase this. Let's move ahead. Now here we have given three trigonometric identities: sin square theta is equal to cos square theta is equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. What it means that in any right angle triangle, अगर हम साइन और कॉस का रेशो लेते हैं, उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर देते हैं, वो दोनों रेशोस को, तो वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 1 को ऐड करते हैं tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा मींस किसमें ऐड कर रहे हैं हम, वो जो रेशो है उसका स्क्वायर लेंगे, उसमें 1 को ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, these three trigonometric identities are true for all right angle triangle irrespective of their measures। कुछ भी मेजर रहे, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ये होल्ड करेंगे। नाउ how we derive these three trigonometric identities in maths, we have to prove everything, you know, we cannot take anything as granted। किसी ने बताया फॉर्मूला और वो एक्सेप्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। उसका एक पेपर पे थ्योरेटिकल प्रूफ होता है, एंड दैट proof we are going to see now of these three trigonometrical identities। Let's move ahead. See here we have a triangle ABC. Okay, measurement of angle
measurement of angle B is 90 degree. Okay, this is 90 degree and measurement of angle C is theta degree. This is 90 degree, 96 दिख रहा है but 90 degree. Okay, okay, let's move ahead. Now consider right angle triangle ABC. Angle B क्या है? 90 degree है. Now angle B is 90 degree, right? So this must be hypotenuse opposite to 90 degree, and these are two legs of this triangle, right? Or two other sides. So by Pythagoras theorem, what Pythagoras theorem says is that the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. तो ये hypotenuse का हमने क्या किया? What we did is that we have squared the measurement of this hypotenuse and it will be exactly equal to sum of square of other two sides, that is square of AB and BC. उसका अगर स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा. ओके, ठीक है. इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 एंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू डिराइव रिमेनिंग थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. लेट्स डिराइव देम. See here, AB square plus BC square is equal to AC square by Pythagoras theorem. Now divide both sides of these equations by AC square. Divide both sides of this equation by AC square. Okay, divide करते. Here we have divided this equation by AC square. तो AB के नीचे भी AC आ गया, BC के नीचे भी AC आ गया, AC के नीचे भी AC आ गया. Okay, तो numerator and denominator both have same power. Let's take the power common. Yeah, what we did is that we write a bracket to the fraction. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने ब्रैकेट में डाल दिया. वी राइट गिव ब्रैकेट टू इंटायर फ्रैक्शन एंड राइट टेक पावर कॉमन एज 2. ओके, यहाँ पे हमने ये पावर 2 कॉमन निकाली, यहाँ पे ये 2 निकाली, यहाँ पे ये 2 निकाली. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे हैव सेम पावर. यहाँ पे एसी एसी दोनों की पावर 2 थी, बीसी एसी दोनों की पावर 2 थी, इसकी भी पावर 2 थी, इसकी भी पावर 2 थी. अरे आप आइडेंटिटीज में पढ़े हो ना. अगर a अपॉन बी रेस टू यम यम है देन वी कैन राइट दिस एज a अपॉन बी एंड पूरे फ्रैक्शन को हम एक पावर दे सकते हैं. We can take power as common. Okay, ये identities में आपने पढ़ा है. So here we have written this step according to this formula of exponent or indices. Sorry, मैं identity बोल रहा था, आपने indices में पढ़ा है, indices और exponent में. So we can write this like this. Okay, now let's erase this thing. Okay, now AC upon AC we are dividing to same thing. Means इसका आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है. इसका आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है. Now BC upon AC. ओके, ये हमारा इक्वेशन था. अभी देखो, AC अपॉन AC इज 1 डिवाइडिंग टू सेम थिंग 1. BC अपॉन AC, सो दिस इज B and this is C. So this is adjacent side. Okay, this is A and this is C. So this is hypotenuse. Okay, so adjacent side by hypotenuse क्या होता है? We have already studied. Adjacent side by hypotenuse means O hero, A hero. Hero means cos theta. Okay, now ठीक है, let's delete this खिचड़ी. So BC upon AC is cos theta. Now okay, AB upon AC sin theta आता है. AB क्या है? This is A, this is B, and this is opposite side, right? And AC, this is hypotenuse. Okay, so AB upon AC क्या आएगा? Sin theta. This is sin theta. तो ये इक्वेशन में ये जो वैल्यूज है 1 cos theta sin theta, ये जो वैल्यूज है दिस इक्वेशन विल बी पुट इनटू दिस इक्वेशन. तो हम क्या लिखेंगे? sin square theta plus cos square theta equal to 1. Now in trigonometry, whenever we take square of a ratio, we write it as sin square theta. क्या करते हैं हम? sin square theta लिखते हैं. sin theta होल ब्रैकेट स्क्वायर इस तरीके से नहीं लिखते. sin square theta लिखते हैं. इस तरीके से नहीं लिख सकते. sin थीटा स्क्वायर, ये क्या हो गया? एंगल का स्क्वायर. एंगल का स्क्वायर नहीं करना है और फिर उसका रेशो नहीं लेना है, हमको रेशो का स्क्वायर करना है. तो रेशो का अगर स्क्वायर करना है, सो वी हैव टू राइट sin square theta. सो सी हियर sin square theta plus cos square theta equal to 1. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. ओके, सो इस तरीके से ये हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने डिराइव कर ली. इसको हम बना देते हैं बॉक्स. ओके, वेरी गुड. लेट्स गो अहेड. अगेन सेम ट्रायंगल, उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. पिछले बार हमने AC से डिवाइड किया था, अभी हम BC से डिवाइड करेंगे. तो कर देते हैं डिवाइड. BC से डिवाइड करेंगे. डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय BC कर दिया. BC से डिवाइड. BC से डिवाइड करने के बाद पावर इंडाइसिस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कॉमन ले लिया. उसके बाद क्या करेंगे? सी हियर AB अपॉन BC. ए कहाँ पे भाई? ये A है और ये B है. ये A है और ये B है. तो ये क्या है? अपोजिट साइड. ओके, ये क्या है? अपोजिट साइड.
उसके बाद क्या बताया है, बीसी अपॉन एसी। क्या बताया, बीसी अपॉन एसी। तो बीसी अपॉन एसी क्या है, एडजेसेंट साइड, पार्ट है ना एंगल का। हाँ, तो क्या है, एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड क्या आता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, tan थीटा। क्या आता है, tan थीटा। अभी देखो, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है बीसी अपॉन बीसी। बीसी अपॉन बीसी 1, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे tan आ जाएगा। ओके, एसी अपॉन बीसी। सो एसी मीन्स हाइपोटेनस, ये क्या है, हाइपोटेनस। और बीसी मीन्स एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो ये तीन वैल्यूज हमने पता किए, tan थीटा, सेक थीटा और 1। लेट्स पुट ऑल दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट इक्वेशन लाइक दिस, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। टेक 1 अहेड, tan को पीछे भेज दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज अवर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मेक दिस एज अ बॉक्स। Okay, now let's derive third trigonometric identity again. Same right angle triangle. Apply Pythagoras theorem to it. Now, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए हमने एसी से डिवाइड किया था, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए हमने बीसी से डिवाइड किया था, अब हम एबी से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय एबी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, डिवाइड आफ्टर डिवाइडिंग टेक पावर कॉमन ले ली। अभी ये इंडिविजुअल रेशो है, ये कौन से, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, वो पता करो। पता कर लिया, बीसी अपॉन ए बी कॉट थीटा है। कैसे कॉट थीटा है, अरे देखो, ये बी है, ये सी है, एडजेसेंट साइड है, दिस इज एडजेसेंट। ए बी क्या है, अपोजिट साइड है, ये क्या है, अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब tan का उल्टा वो क्या होता है, कॉट। सो दिस इज कॉट। एसी, एसी, दिस इज एसी। एसी क्या है, हाइपोटेनस है, और ए बी क्या है, अपोजिट साइड है। तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट क्या होता है, कोसेक। दैट्स व्हाई सेक ए बी बाई बी इज 1। वैल्यू पुट अप कर लो, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। दैट्स इट। सो इस तरीके से वी हैव प्रूव्ड ऑल द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर और दिस क्लास। यू कैन से लेक्चर तो सीनियर कॉलेज के लेवल पे होता है, हम छोटे लोग हैं, हम क्लास ही बोलेंगे। तो आपको मजा आया होगा, आई होप सो। और इसी तरीके से मैं अभी ऑनलाइन जूम क्लासेस ले रहा हूँ, आप मेरे पास ट्यूशन लगा सकते हैं एट अफोर्डेबल फीस। मंथली फीस होंगी, कितनी फीस होंगी उसके लिए आपको मुझे कॉल करना है। इस नंबर पे 10th के स्टूडेंट को कॉल करना है सिर्फ। जो 10th में जाने वाले हैं, जो 10th में है वो नहीं, उनका सेशन तो स्टार्ट हो गया है। जो 10th में जाने वाले हैं उनको मुझे इस नंबर पे कॉल करना है, जो मेरे पास ऑनलाइन जूम क्लासेस पे ट्यूशंस लगाना चाहते हैं। मंथली फीस होंगी और एटलीस्ट एक बैच में 20 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर एक बैच में 20 स्टूडेंट्स मिलते हैं तो ये बैच स्टार्ट होंगे। और इंग्लिश, मैथ, साइंस तीनों सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा एट अ मंथली फी। आपको मंथली पे करना है। 2 घंटे की हमारी क्लास होंगी शाम में, मोस्टली इन इवनिंग। और आपको पूरा स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह, और आपके पेपर भी चेक होंगे। आप बोलेंगे सर ऑनलाइन क्लास है, आप क्या कंप्यूटर स्क्रीन में से पेपर डाल देंगे क्या, नहीं नहीं, देखिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट को सॉल्व करना है, जो मैं आपको दूंगा उसका फोटोग्राफ पीडीएफ बना के मेरे को सेंड करना है। वो पीडीएफ मैं चेक करके आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और एक बैच में मोस्टली 50 to 20 स्टूडेंट्स है, सबकी रेगुलर चेकिंग होंगे। तो अगर आप मेरे पास ट्यूशन लगाना चाहते तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मंथली फीस पे ट्यूशन होंगी, जो मंथली फी पर करेगा उसको आगे और एक्सेस मिलेगा, नहीं तो एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप मेरे क्लास क्लास लगा सकते हैं, क्लास 10th का। इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए ऑनलाइन जूम क्लासेस के लिए। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। जो 10th में उन्हीं को कॉल करना है, और जिनका नेटवर्क फास्ट है, इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है, 5G, उनको मुझे कॉल करना है। थैंक